Good morning, my dear students. Hope you all are good and fine. This is your maths class, and we are doing chapter number 3, money, right? So we have done some topics of this chapter, some basics of this chapter, and yesterday what we did let's try 1. 2 questions we have done in let's try 1, right? So first of all, we will do recapitalization of those things. After that, we will start a new one. So what we have done in the last class, we have done comparing the value. Value को कैसे compare किया जाए? How can we compare the note? How can we compare the coin? Today we will learn again this. After that, we will go ahead. So compare the value by these two signs. Students, I told you about these two signs and how can we use these signs, right? So this is open face, this is closed face, this is open face, this is closed face. If we will put this sign in between any number, किसी भी दो नंबर के बीच में अगर मैं साइन पुट करती हूँ, इसका मतलब क्या है? If I will put this sign, अगर मैं ये वाला साइन पुट करती हूँ और अगर जो ये ओपन फेस है, ओपन फेस जिस भी नंबर के सामने, इट मीन्स दैट नंबर इज बिगर देन अदर नंबर. Just like अगर मैं बोलूँ that I have 10 and I have 20 and I have to analyze, I have to check that which number is greater between 10 and 20. So we all know that 20 is greater than 10. But how can we show this? हम कैसे manifest कर सकते हैं? How can we show this that 20 is greater than 10? So with the help of these signs we can show that 20 is greater than 10. So how can we show? मैंने आपको बताया था जो भी बड़ा नंबर है उसके सामने ओपन फेस आना चाहिए. अगर मैं ये लगाऊंगी तो ये तो क्लोज फेस आ गया, इसका मतलब ये रॉन्ग है. इट मीन्स विच साइन वी विल यूज दिस साइन. इट मीन्स वी विल यूज दिस साइन है, राइट? सो दिस इज ओपन फेस. ये सामने से ओपन फेस है तो इसके सामने क्या है? ओपन फेस आया. इसका मतलब हम कह सकते हैं दैट 20 इज ग्रेटर देन 10, राइट? नाउ वी हैव 2 क्वेश्चंस हियर. Rupee 20 note and rupee 50 note. Now we have to analyze first that which number is greater. After that we will put the sign according to the number. So 20 and 50. Students, 0, 0, same value. 2 and 5, it means 5 is greater. So 50 rupee note is greater than 20 rupee note. Now we will put the sign. So कौन सा sign हम यहाँ put करेंगे? Open face वाला. तो इसके सामने open face आएगा. It means now we can say that 50 is greater than 20. So this sign indicates that 50 is greater than 20 and 20 is smaller than 50. Now come to next one. Rupee 5 coin, rupee 10 coin. ये रुपये 5 का कॉइन है, ये रुपये 10 का कॉइन है. नाउ वी हैव टू सी दैट विच नंबर इज ग्रेटर. वी ऑल नो दैट कि रुपये 10 ज्यादा है, रुपये 5 कम है. सो हाउ कैन वी शो दिस? वी कैन शो दिस बाय दिस साइन. सो दिस इज ओपन फेस साइन. सो वी विल पुट हियर to show that rupee 10 coin is greater than rupee 5. And this sign shows, जो corner है, जो close face है, ये क्या show कर रहा है? This sign is showing that rupees 5 is smaller than 10. Right, students? So we can say that rupees 50 is greater than 20, 20 is smaller than 50, 10 is greater than 5, 5 is smaller than 10. Okay, students, so we have discussed our previous topic. Now we are going to study a new topic, and the new topic is number combination. Number combination means that how can we combine the number. कैसे हम combination बना सकते हैं numbers का दूसरे number से. कैसे हम एक note का combination बना सकते हैं with another note or another coin. So now we will study about this. So let's read this line first. Read this question first. After that I'll tell you. Rahul has 5 rupees. Rahul has 5 rupee 5 coins. What the question is saying कि राहुल के पास 5 रुपए वाले कॉइन है, राइट? ये क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स? राहुल के पास 5 रुपए वाले कॉइन है. यस, राहुल हैज 5 2 rupees coin, not 5 rupee. This is 2 rupee coins. राहुल के पास 5 2 rupee coins हैं and राजू हैज 1 rupee 10 coin. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राहुल के पास
₹2 वाले 5 कॉइन है और राजू के पास एक ₹10 वाला कॉइन है। दोबारा क्वेश्चन में समझाती हूँ स्टूडेंट्स। राहुल के पास ₹2 वाले 5 कॉइन्स हैं और राजू के पास ₹10 वाला सिर्फ एक कॉइन है। एक बार बना के देखते हैं हम कि राहुल हैज ₹2 कॉइन्स, 5 कॉइन्स उसके पास। ₹2 वाला जो कॉइन है वो 5 कॉइन्स से बनाते हैं स्टूडेंट्स। 1 2 3 4 and 5। Again you will read the question कि राहुल हैज 5 ₹2 कॉइन। यहां तक स्टॉप कीजिए कि राहुल के पास 5 ₹2 वाले सिक्के हैं। 1 2 3 4 5। नेक्स्ट राजू हैज 1 ₹10 कॉइन। अब राजू के पास एक कॉइन है जिसकी जो कितना है ₹10, राइट। इसके पास राहुल हैज 5 ₹2 कॉइन, राजू हैज 1 ₹10 कॉइन। नाउ वी हैव टू सी, हमें कंबाइन करके देखना है क्या ये इक्वल है, क्या इनमें कोई सिमिलैरिटी है। देयर इज एनी सिमिलैरिटी बिटवीन दीज, क्या इसमें और इसमें कोई सिमिलैरिटी है। अब हमें देखना है कि राहुल के पास कितने पैसे हैं टोटल। राजू के पास तो वी नो दैट ही हैज ₹10, बट नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दैट हाउ मेनी रुपीज डज राहुल हैज, कि राहुल के पास कितने पैसे हैं। स्टूडेंट्स देखिए 2 + 2 + 2 + 2 + 2, अगर मैं 2 को 5 टाइम्स ऐड करती हूँ 2 + 2 + 2 + 2 + 2, तो व्हाट वी विल गेट आफ्टर द एडिशन 2 + 2 + 2 + 2 + 2 ऐड करते हैं 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। Add all these 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Students, if we will add all these coins, अगर मैं इन सारे coins को add करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 10। इसका मतलब ये भी ₹10 है, ये भी ₹10 है। It means we can say that Rahul and Raju have equal money, कि राहुल और राजू के पास इक्वल मनी है। बट इसके पास क्या है, इसके पास कॉइन्स थोड़े ज्यादा हैं, बट वो है कितने ₹2 के। बट ही हैज ओनली 1 कॉइन, बट वो है कितने का ₹10 कॉइन। बट द वैल्यू इज सेम, जो वैल्यू है वो दोनों की क्या है, सेम है। अगर ये दोनों कुछ खरीदना चाहते हैं, इफ दे वांट टू ईट आइसक्रीम एंड द कॉस्ट ऑफ द आइसक्रीम इज ₹10, तो दे बोथ कैन ईट आइसक्रीम बिकॉज ही हैज ₹10, ही इज ऑल्सो हैविंग ₹10। इसके पास ₹10 है और इसके पास भी ₹10 है। बस इसके पास फर्क क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है दोनों में, दैट ही हैज ₹2 कॉइन एंड ही हैज ओनली ₹10 कॉइन, बट द वैल्यू इज सेम। दोबारा मैं समझाती हूँ स्टूडेंट्स, इसके पास 5 कॉइन्स है, राइट। He has 5 coins 1 2 3 4 5, but if we will add this value, what we will get? We will get 10, and he has ₹10, so the value of the money is same. दोनों के मनी की जो वैल्यू है वो क्या है, सेम। It means they can buy सेम थिंग्स इफ दे वांट टू बाय। दोनों जो भी चीज अगर सेम खरीदना चाहते हैं तो वो खरीद सकते हैं, बट उसकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, द कॉस्ट शुड बी ₹10, क्योंकि इनके पास तो सिर्फ 10 रुपीज है। सो दिस इज कॉल्ड नंबर कॉम्बिनेशन, दैट हाउ कैन वी कंबाइन द नंबर टुगेदर, कि हम कैसे कैसे नंबर को साथ में कंबाइन कर सकते हैं। नाउ वी विल सी सम मोर एग्जांपल्स ऑफ दिस। Now, I have 3 questions here for you. Now again we are doing combinations. Now we have some coins, right? Now what we have to find out, अब हमें find out करना है, if we will add these value, तो ये किसके equal आएंगी, what we will get, हमें क्या मिलेगा टोटल में। देखिए, you have 2 coins, ₹1 and ₹1, and you have to add these coins. After that we will see कि हमारे पास टोटल मनी होगा कितना, right? ₹1 plus ₹1. If I have 2 coins of ₹1 and I will add, तो कितना होगा स्टूडेंट्स, 1 plus 1 2। इसका मतलब ये क्या है, ₹2। यहाँ क्या बन गया टोटल, ₹2 कॉइन। समझ में आ गया, ये क्या है, ₹2 कॉइन। यहाँ पे अगर हमने ₹1 और ₹1 वाले कॉइन को ऐड कर दिया, देन व्हाट वी विल गेट, ₹2 कॉइन। सो वी कैन से दैट इफ वी हैव
2 1 rupee coin, or if we have only 1 2 rupee coin, so we can say that the value of both these coins are equal. हिंदी में फिर से बताती हूँ, अगर हमारे पास एक एक के 2 सिक्के हैं या 2 का 1 सिक्का है, उन दोनों की जो वैल्यू होगी दैट विल बी सेम. वो क्या होगी? सेम होगी. क्योंकि स्टूडेंट्स देखिए, अगर मेरे पास 2 रुपए हैं, 1 और ये 2, और ये सीधा मेरे पास 2 रुपीज का कॉइन है, तो बात तो एक ही. अगर मैं इन दोनों का ऐड करती हूँ तो बनेगा तो यही, राइट? समझ में आ रही है मेरी बात स्टूडेंट्स? देखिए, 2 मेरे पास क्या थे? 1 रुपीज के कॉइन थे, और मेरे पास एक सीधा 2 रुपी कॉइन था. बट अगर तब हमने 1 को ऐड किया तो वी विल गेट 2. सो 2 इक्वल्स टू 2 इज सेम. द वैल्यू ऑफ बोथ दीज कॉइन्स आर सेम. सो वी कैन से दैट दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू, right? So this is called number combination. Now, rupee 5 plus rupee 5 plus rupee 5 plus rupee 5 plus rupee 5. Now I have 1 2 3 4 5 coins of 5. अब hamaरे पास 1 2 3, सॉरी स्टूडेंट, इसको हम इरेज कर देते हैं. हम इसको नहीं मान रहे हैं, राइट? इसे हम नहीं मान रहे हैं. 1 2 3 4, इसे हम इरेज कर देते हैं. Now I have 1 2 3 4 coins of 5. अब मेरे पास 4 सिक्के हैं 5 के. If I will add all these coins, how much value I will get? मुझे कितने वैल्यू मिलेगी? कितने पैसे टोटल हो जाएंगे? Let's add all these. 5 है तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. This is very easy way to add, students. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. So it will be rupee 20 coin. Right? Now rupee 20 coin is available in the market. Okay. अगर हमारे पास 4 5 के सिक्के हैं, 5 के सिक्के, 5 वाले कॉइन अगर मेरे पास 4 है, और मैंने बोल दिया कि इस हाथ में अगर मेरे पास 5 5 के 4 कॉइन्स है, और मैंने बोला दैट इन दिस हैंड आई हैव 120 रुपी कॉइन. सो द वैल्यू ऑफ ऑल दीज कॉइन्स इज इक्वल टू ओनली दिस 1 कॉइन. समझ में आ गई मेरी बात स्टूडेंट्स? देखिए, इन सब कॉइन्स की जो वैल्यू है वो इस एक कॉइन के इक्वल है, बिकॉज इफ वी विल एड ऑल दीज वी विल गेट 20. सो वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ ऑल दीज 4 कॉइन्स इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ दिस सिंगल कॉइन. 20 equals to 20. So this is called number combination. Now next is rupee 10 coin plus rupee 10 coin. 10 में 10 को ऐड करते हैं तो it will be rupee 20 coin. So we can say that the value of these 2 coins is equal to this single coin. कि इन 2 coin की जो value है वो इस single coin के equal है. So this is called number combination, students. That's it for today. और हम नहीं करेंगे. So students, what we have done today, we have done number combination, recapitalization of previous topic. So that's it for today. See you in the next class.